हेलो। हाय हाय। संजना जी, नमस्ते। नमस्ते जय आपको। भीम। जय भीम आपको। जय जी। अच्छा, कैसे हैं? खैरियत सब? हाँ, सब ठीक। अच्छा, ठीक है। अम, आपको अगर बीच में कभी थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम होगा या सुनाई नहीं दे रहा है तो बता दीजिए। और ठीक। अगर चाहेंगे तो थोड़ी देर भी ऑडियो मोड में भी कर सकते हैं। हाँ, आपकी ओके। मर्जी। ठीक है। ठीक है। ओके। तो I will just introduce you, introduce the live, and then शुरू करेंगे, ठीक है? Okay. ओके। Hello everybody. Welcome to this Insta live. The last one for March, and especially to commemorate Transgender Day of Visibility. I think this whole month almost we've been remembering it. Last week when we did it with Jamal, the co-founder of Trans Men Collective in India, and again today with Sanjana, who's a trans rights activist, Hindi motivational writer, and also associated with the Bahujan Queer Collective based in central India, and a young but fearless activist for trans rights, identifies as a trans woman. And also, I am Ritash. I am gender fluid, asexual, panromantic, neurodivergent, queer. I have invisibilized disabilities. And we've been doing these Insta lives for almost 2 years now, from people from trans, queer, intersex, ace people from across the world. So the idea is at Rang, we are a pan-India intersectional queer trans collective, very grassroots, and we are trying to document and bring to the forefront um, first person, experiences, lived realities of queer trans people who are doing fantastic stuff very quietly and who are not that visible or known or heard. And of course, they're all intersectional queer trans people. And they've all of them, we are always very grateful to the people who agreed to be part of these lives, because it is shared journeys, shared spaces that we which are missing from even the entire global context, especially Indian, South Asian, multilingual, intersectional queer trans narratives are hardly there. So this is a small effort, especially because you're first person, to document, record these. And if you are watching it live or you're going to watch it later, please comment. You may be watching, you may be hearing, you may be reading text, whatever your preference, because auto translation is there. Please share, please comment, interact. If you want, you can send DMs, because we at Rung give legal and healthcare referrals. I am also a peer counselor for our LGBTQIA+ community. I do pro bono mental health support in 5 languages in India. We have, as part of our very small collective, a few others who are in healthcare, who are in practicing law. So whether we take up or refer, we'll do our best to support you. And similarly, our guests, who are also our friends, will be happy to answer your message. है ना संजना जी? अगर कोई किसी तरह का सपोर्ट चाहते हैं तो आपको मैसेज कर सकते हैं ना, कहीं हाँ, पे कर भी। सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो हम अभी शुरू करेंगे। दिस विल मेनली बी इन हिंदी, बट we will use English periodically. तो किसी को अनुवाद चाहिए from Hindi to English, if anybody needs translation, a summary, I can keep typing as we speak. Okay. And similarly,
while we may not invite you to the live directly, because unless of course it is with our partner organization called Nestam Sojas, which works in the smaller towns of Andhra and also in schools, giving gender and sexuality awareness. Very important, very difficult work they do. They are also founded by a non-binary, two non-binary one trans woman and one non-binary trans person who are based in Andhra. So, they also provide lots of peer support, community support, and reference. So, if anybody wants, any kind of clarification, question, support, or just wants to express, solidarity with us, please don't hesitate. Please be respectful. Okay? तो वही है, क्योंकि हम सब क्वेयर ट्रांस लोग जहाँ पे भी है दुनिया में, हमें बेइज्जती और नफरत ज्यादा मिलता है, ठीक है? और वो उसको हम पूरा कम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमारे बारे में थोड़ा बातचीत करके, आपके सामने पेश करके, हमारा क्या रियलिटी है हमारा कम्युनिटी का, कुछ शेयर्ड रियलिटीज है, कुछ यूनिक इंडिविजुअल अनुभव है, वो सब सामने लाके, जो भी संजना जैसे और उनका जो फ्रेंड यशिका है, वो भी दलित ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुजन क्वेयर कलेक्टिव का फाउंडर हैं वो, तो बहुत बढ़िया, बहुत अहम काम कर रहे हैं और लोग बहुत मुश्किल से, और अपना जिंदगी भी जी रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ जानकारी हम और सब लोगों को देना चाहते हैं, और खुद हम ज्यादा नहीं जानते संजना जी के बारे में, तो अभी वो जानकारी भी लेने का, और ये बहुत इनफॉर्मल एक बातचीत होगा, ये कुछ इंटरव्यू जैसा नहीं है, जो कम्युनिटी के दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, ऐसा होगा। ठीक है? ओके। तो संजना जी, पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इमीडिएटली अग्री किया, हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और सॉरी बहुत पोस्टपोन करना पड़ा इधर उधर, हमारे ट्रांस लोग इधर उधर क्या कम्युनिटी में कभी क्राइसिस आ जाता है, कभी भूल जाते हैं, हमारा भी अपने आप निजी जिंदगी में थोड़ा हमारा हेल्थ इश्यूज थे, वो सब उसके वजह से थोड़ा पोस्टपोन हुआ, लेकिन आज हो रहा है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम। अच्छा, तो हेलो संजना। हाँ, तो ठीक है, तो आप मतलब अपने बारे में जो भी बताना चाहेंगे आप प्लीज खुल के बात कीजिए, और अगर कुछ नहीं बताना चाहेंगे वो भी आपकी मर्जी है, और मैंने कोई सवाल पूछा और जो आपको पसंद नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जी जी, ठीक है? हाँ, तो संजना जी, स्क्रीन सही से विजिबल हो रही है, हाफ हो गई शायद स्क्रीन, क्या कि सही है? नहीं, मेरा तो थोड़ा ये मेरा हाथ का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा शेक होता रहता है। नहीं, लेकिन मेरी अगर तरफ से, मेरे साइड से नहीं, आप बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो आप बात करते रहिए, कभी कभी कनेक्टिविटी में ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मुझे तो बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो संजना जी, आप हमें मृताश बुला सकते हैं, क्योंकि हमारे जेंडर के हिसाब से हम अपने आप को मर्द या औरत जो कुछ भी नहीं समझते। ठीक है, तो आप अभी क्या क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे आप? थोड़ा या ज्यादा बता सकते हैं? एक्चुअली मैं अभी मेरा मतलब सोशल वर्क में मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हुआ था एमपी से, और उसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ह्यूमन राइट्स से मास्टर डिग्री वहां से की। अच्छा, और तो उधर आपके फ्रेंडशिप यशिका जी से हुआ क्या? यशिका से हुआ? जी, फिर से हाँ जी। मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहे, उधर आप मिले थे यशिका से? हाँ जी। अच्छा, तो ये बहुजन क्वेयर कलेक्टिव कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या करते हैं आप? वो वहां से मतलब उसने क्रिएट किया था, फिर
जनरली क्योंकि ऐसा कुछ इस चीज के बारे में लोग अभी ज्यादा वो नहीं बात नहीं करते ना, कि सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी पे कास्ट वगैरह का भी इसमें चीजें हैं, तो वो लोग नहीं मानते हैं लोग जनरली। तो ये चीज की इतने सारे इश्यूज हैं, उसमें भी पीडब्ल्यूडी पर्सन रहते हैं और लोग भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए क्यों ना अलग बनाया जाए, इसलिए वो क्रिएट किया गया था। अच्छा ठीक है। और आप अपने आप को ट्रांस वुमन हाँ मानते जी। हैं? हाँ जी। लेकिन कई लोग ये मतलब ये हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यशिका जी ने बताया, और हम भी बहुत सारे हिजड़ा कोती लोग को जानते हैं जिनको हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत मिला हमें भी। हमें बचपन, हम हैदराबाद में पैदा हुए तो उधर हिजड़ा बधाई तो मिल गया 1973 में, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे ट्रांस कम्युनिटी में काफी सारा वायलेंस है, हाँ काफी जी। सारा डोमिनेशन है ना? तो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? आप बताना चाहेंगे तो। यचिका जी ने बताया पिछले 3-4 महीने पहले, हाँ, लेकिन बहुत कम लोग ओपन खुल के उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा आप बताना चाहेंगे जो? एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती, और हम्म, एजुकेशन के लिए में भी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे भी उनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो हम्म, वो फिर कल्चर उसमें वो अप्लाई उसमें चले जाते हैं, और फिर वो कम्युनिटी मतलब वो जो सोशियो बेस्ड कल्चर रहता है पढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ें जो रहती है, उसमें वो चले जाते हैं। यदि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले या सपोर्ट मिले, तो वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। जी। और मध्य प्रदेश का हालत कैसा है? हम ज्यादा नहीं जानते, मध्य प्रदेश का हालत कैसा है? अवेयरनेस नहीं, मतलब इतना नहीं, अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। बट जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने पहले तो मेरा कॉलेज कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर डिग्री जब सोशल वर्क के लिए की, तो मैंने कॉलेज चेंज किया। मेरा दूसरे कॉलेज, मतलब जिस कॉलेज में से मैंने कॉलेज मतलब बैचलर किया था, उससे नहीं किया मैंने, क्योंकि उस टाइम के बाद मैंने कम आउट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने ग्रो कर लिया, तो फिर मैंने अदर कॉलेज में एडमिशन लेकर के वहाँ पे भी मैं हाइड ही रही, मतलब मैंने मास्टर डिग्री एक मास्टर डिग्री तो मैंने पूरी हाइड रह के ही की है। लोगों को थोड़ा थोड़ा तो लगता था, बट ये कि मैंने अपने आप को इतना हाइड किया कि लोगों को इतना पता नहीं चलता था। फिर उसके बाद वहाँ से मैं एक बार मैं निकली चंडीगढ़ की प्राइड के लिए फर्स्ट टाइम, एमपी से यहाँ पे। तो वो टाइम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा। उसके बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम में आई, वहाँ पे प्राइड हुई थी, और मेरी फ्रेंड थी एक प्रियंका और यशिका, इन लोग के साथ में मिले, चीज़ें देखी वहाँ पे, मेरे को अच्छा लगा एनवायरनमेंट की, वहीं पे एडमिशन लेना चाहिए। तो फिर आप, एग्जाम, हाँ अच्छा, बोलिए बोलिए, बताइए बताइए, सॉरी बीच में हम इंटरप्ट नहीं करना सर। हाँ हाँ। फिर एग्जाम्स दिए, वहाँ पे एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस दिए, उसमें पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही थी कि सिलेक्शन होगा, बट वहाँ पे हो गया। मेरा दोनों में, मेरा वुमेन स्टडीज में भी हो गया था, मेरिट बेस पे, मतलब जो मार्क्स वगैरह थे बैचलर के, पॉलिटिकल साइंस और ये और सोशोलॉजी, इनके मार्क्स के थ्रू मेरिट बनी थी, उसमें भी मेरा हो गया था, और ह्यूमन राइट्स में दोनों में हो गया था। तो ह्यूमन राइट्स में मुझे करना था, तो ह्यूमन राइट्स भी मिल गया था मुझे। जी। तो काफी अच्छा था कि चलो ठीक है, वो चीज हुई। फिर फैमिली का भी थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ। फैमिली समझती थी, बट क्या है कि प्रॉपर नहीं समझते, मतलब थोड़ा थोड़ा तो एक्सेप्ट करते थे उस टाइम पे, बट इसके बाद थोड़ा एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ा। कौन सा आपका, आपके खानदान में? हाँ, फैमिली में आपके मतलब खानदान, रिलेटिव्स का तो ठीक है। नहीं बोल सकते हम, लेकिन फैमिली के बीच हाँ, मेन तो लेकिन कम से कम आपके यहाँ का कोई भाई बहन हो तो उन्होंने एक्सेप्ट किया हाँ है आपको? किया था, ब्रदर वगैरह ने समझा था, फिर सब लोग समझते हैं। और उससे अच्छा पहले ठीक है। उससे हाँ। पहले मैं कोविड के टाइम पे तो इतना वो नहीं था, सोशल चीज़ों से जुड़ी रहती थी मैं जनरली। यूनिसेफ हो गया और ओ, भी उन सब चीज़ में मैं मीटिंग्स वगैरह, मतलब मैं अपने आप को बिजी रखती थी माइंड, मतलब जनरली क्या होता है ट्रांस पर्सन के साथ ये होता है ना कि वो बहुत परेशान रहते हैं, यदि अपने आप को बिजी रखते हैं अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब फिर मतलब ये कि अपना माइंड खाली नहीं रहता, डाइवर्ट रहता है, तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है। तो मैं अपना राइटिंग करती थी, मैं पोएट्री वगैरह लिखती थी, तो बढ़िया मैं बढ़िया। कोविड के टाइम पे मैंने राइटिंग करना स्टार्ट की, जब भी परेशान होते थे तो वो करती थी। फिर मैं गार्डनिंग भी करती थी, तो गार्डनिंग में माइंड अपना वहाँ डाइवर्ट किया मैंने। बढ़िया। मार्केटिंग हाँ। लाइन थी वो की,
एक प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके मैंने कुछ मॉडल ओह बनाए थे, तो वो भी उसमें भी मेरा माइंड डाइवर्ट किया मैंने थोड़ा, जैसे तो मल्टीटास्क करके अपने आप को जी, डाइवर्ट। तो आपके मल्टीपल इंटरेस्ट है, मल्टीपल टैलेंट्स है, स्किल्स हैं। हाँ जी, अगर इस लाइव पे आपका कोई अपना कविता सुनाना चाहेंगे तो बहुत खुश होंगे हम, लेकिन हाँ कोई जी, जबरदस्ती नहीं है। अगर आप अपना कविता कोई कुछ पढ़ना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे, बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, लेकिन आपको नहीं करना है भी, नो कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी। और अभी आपने 2 मिनट पहले बोला कि एमपी में, मतलब ऐसा पूछ सकते हैं क्या कि आप एमपी और पंजाब में, मतलब शायद आपने बहुत बागी जगह पे गए होंगे, लेकिन हाँ, एमपी में आपकी पैदाइश हुई, आपका स्कूल हाँ जी। अंडर ग्रेजुएट तक भी आप एमपी में ही थे ना, कॉलेज भी? हाँ हाँ, एक मास्टर डिग्री भी मेरी वहीं कंप्लीट थी, फिर हाँ, डबल अच्छा, मास्टर डिग्री पहला हुई है। मास्टर्स आपका एमपी में ही हुआ। तो एमपी और पंजाब में क्वियर ट्रांस कम्युनिटी के साथ जो जो भी जबरदस्ती होता है, नफरत होता है या एक्सेप्टेंस होता है, कौन सा बेहतर है? एक्चुअली क्या है ना कि वैसे एमपी में ठीक है, मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा क्रॉस ड्रेसिंग, यदि मान लीजिए कोई चीज में पार्टिसिपेट करता है, हम्म गांव एरियाज में, ठीक है, हम्म, विलेज एरियाज में करते हैं, वहां पे उसको एट ए उस टाइम तक सब मतलब समझते हैं। बट यदि उसको, यदि अपनी लाइफस्टाइल में यदि वो ऐसे है प्रॉपर, तो उसको डिस्क्रिमिनेट होता है कि लोगों का अवेयरनेस नहीं है। ये मेरे साथ बहुत पहले से चीजें होती रहती थी, बट फिर मैं सोच मतलब चीजें हाइड ही करती थी, मैं अपने सामने नहीं जाती थी, अच्छा। फैमिली को तो फोर्स करते हैं, वैसे है मैंने काफी टाइम डिप्रेशन में रहने के बाद मम्मी की मतलब प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम थी, कुछ हेल्थ इश्यूज था पहले, क्योंकि मतलब किडनी वगैरह की प्रॉब्लम थी, उनकी डेथ भी हो गई थी 2009 में। तो लोग बोलते थे कि एज अ ट्रांस पर्सन इसकी वजह से यही है, मतलब मेरी वजह से ये सब चीजें हुई, क्योंकि लोग जनरली उसको नेगेटिव समझते हैं, हम लोगों को कि हमारी ओ, सोल ही नेगेटिव है। ये लोग बोलते यू अच्छा। आर नॉट अ ह्यूमन, आप ह्यूमन ही नहीं हो, ये समझते हैं लोग। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरी वजह से चीजें हैं। बट जब साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उनसे कंसल्ट किया, उससे पहले मैं एक मेडिटेशन है, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, हम्म शायद आप जानते होंगे, श्री रामचंद्र मिशन करके SRCM करके है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन एक बहुत बड़ा मतलब एक ट्रस्ट टाइप का है, जो नहीं इंडिया से ऑल वर्ल्ड में मेडिटेशन फ्री में मतलब होता है। इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो मैंने वो ज्वाइन किया था 2016 में। उसके बाद मेरे पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। मेडिटेशन करने से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई थी, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक था। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने अपने लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, चीजें ऐसी अपने आप को अलग, मैंने मतलब बहुत सी चीजें झेली उस टाइम पे। बट फिर भी हम्म। कॉलेज तक, फिर जब नेट आया, नेट से थोड़ी अवेयरनेस हुई, थोड़ी जानकारी मिली मुझे, फिर सोशल चीजों से भी जुड़े, तो थोड़ा सा फ्रेंड्स बने अच्छे, तो काफी कुछ अच्छा रहा अच्छा, फिर। तो मतलब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पंजाब, स्पेशली चंडीगढ़ में एक्सेप्टेंस थोड़ा बेहतर है एमपी हाँ, से, ऐसा बोल सकते हैं हम? है ठीक वहाँ पे। वैसे एमपी में भी मैंने देखा कि अभी तो मतलब ठीक है, वहाँ पे भी मतलब लोग लोग ये जनरली क्या है कि हम कैसे रहते हैं, किस टाइप से हमारा नेचर है, डिपेंड उससे भी करती है चीजें। यदि आप छोटे शहर में भी रहते हैं, यदि आप सही तरीके से रहेंगे तो आपको कोई गलत वो नहीं करेगा। क्योंकि जी मैंने देखा कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी एमपी में एक बार तो प्रॉब्लम हुई थी, टीजी कार्ड बनाने थे, तब डीएम ऑफिस में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था कि ये किस टाइप से मतलब वाकई में मतलब ये अपने आप को के अंदर हिम्मत है कि नहीं, वो ये भी करते हैं ना ऑब्जर्व। तो उन्होंने हाँ बहुत गलत तरीके से किया, लेकिन हम लोगों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उन्होंने फिर दोबारा फिर उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दे दिया, वरना मजाक बना रहे थे वो, जी कि आप जी, कंट्री को लेके हाँ मजाक बनाते हैं। कभी भी हमें ना अपनी बात को ना बिना डरे लोगों के सामने रखना चाहिए। यदि आप जी, सही हैं, बिल्कुल। तो डरने की जरूरत हाँ नहीं है। हाँ, बेखौफ होके करना है, लेकिन फिर भी इज्जत से बोलना है ना, हाँ, गाली वाली देने की जरूरत नहीं, वैसे बोल हाँ, देना।
हाँ ऐसे एक हाँ। बार बैंक वाला डॉक्यूमेंट का था मेरे साथ प्रॉब्लम, तो मैंने अच्छा। वहां पे बोली आपका अकाउंट नहीं है। मैंने बोला मेरा ही अकाउंट है, आई एम ट्रांसजेंडर पर्सन और ये डॉक्यूमेंट टीजी कार्ड सर्टिफिकेट डीएम के थ्रू साइन होकर के मिनिस्ट्री के थ्रू मिलते हैं हमें, तो आप ये देखिए। तो उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा आपका चेंज डॉक्यूमेंट। और वही दिल्ली ऐसे शहर में, जबकि एमपी इतना छोटे डिस्ट्रिक्ट में रहती थी मैं, तो वहां पे उन्होंने एग्री कर, लेकिन यहाँ पे अभी बैंक में जाएंगे ना, वो एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे गैजेट सर्टिफिकेट लाओ या फिर ये आपका अकाउंट है नहीं। ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ का एक्सपीरियंस भी लिया है। एक फ्रेंड थी, उसका कुछ प्रॉब्लम था डिमांड ड्राफ्ट वाला, तो उसके लिए भी मैंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कि उसका तो साल खराब हो जाएगा। आप लोग तो अपने गलती के चक्कर में तो गलती आपकी है तो स्टाफ को समझाओ आप, या फिर स्टाफ को रोको आप और का मतलब वर्किंग टाइम और बढ़ाओ, इंक्रीज करो उनका हम्म, उस टाइम के लिए। तो उन्होंने मतलब बोलना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, सीधी बात है जी जी। कि आप डरोगे तो मैंने, वो और हाँ, डराएंगे। आपने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन ऐसे जैसे बोल रहे हैं जैसे बहुत प्रोफेशनली, जैसे आम बात है जैसे जी कर दिया, तो शायद ना उसके वजह से उनको सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि हाँ जितना भी हमारे अंदर डर है या गुस्सा है, हम ना अगर थोड़ा बहुत बहस तो तब शुरू करना पड़ेगा जब बहुत बिल्कुल नहीं सुन रहे हाँ हैं ऐसा। लेकिन हाँ कम से कम पहले तो थोड़ा बहुत इज्जत से बोलना लेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, यू हैव टू से इट इन अ वेरी फर्म वे ना, बहुत जी, बहुत फर्मली बोलना चाहिए, है ना, ऐसा किया। लेकिन क्योंकि आपका बात करने के तरीका से भी हमें ये महसूस हो रहा है, जो भी है अंदर, आप खुल के बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इज्जत से बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो सुनने वाला है, उनको भी अगर कुछ गलतफहमी है या जानकारी नहीं है, कम से कम वो सुनेंगे, सही। है ना। लेकिन आपने जो बोला, ये भी एक बहुत अहम बात है कि दिल्ली में सो कॉल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट उधर ही है, सब कुछ उधर ही है यार, वो सब उधर कानून बनाते रहते हैं, पॉलिसी बनाते रहते हैं, लेकिन असल में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं छोटे मोटे, मतलब एमपी उतना छोटा स्टेट नहीं है, नहीं नहीं, पर लेकिन फिर भी मैं जिस टाउन में रहती हूँ ना, हाँ, वो बहुत डिस्ट्रिक्ट में, छोटा। वो सबसे छोटा है और वो इतना भी डेवलप इतना वो नहीं है, मतलब उसको हम्म पहले मतलब पहले अभी डिस्ट्रिक्ट बने ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, मतलब हुआ होगा हम्म, अभी 20-25 साल हुआ होगा ज्यादा से जी ज्यादा। बिल्कुल, हाँ हाँ। लेकिन फिर भी एक्चुअली ना, जैसे आप बोल रहे हैं, वो जगह जग गलत है, सॉरी, छोटा है बड़ा है नहीं है, उनका सोच विचार का हाँ मामला है ये ना। तो है। अगर उनका सोच छोटा है ना, वो सबसे बड़ा न्यूयॉर्क में भी रह सकते हैं, या दिल्ली में या मुंबई में या चेन्नई में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी सोच बड़ा नहीं है तो, छोटा है तो उनका कोई। और ये भी बात है कि मैंने सुना है कि एमपी में भी किन्नर और हिजड़ा समाज काफी है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, वो उधर तो कुछ है, नया है, ऐसा नहीं है, वहाँ भी है, वो फैला चीज तो है। है ना। हाँ, पूरा आई थिंक साउथ एशिया में, आप इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं पे भी जाएंगे, हिजड़ा समुदाय, किन्नर समुदाय तो बिल्कुल है और दिखा है, और बहुत हजारों सालों से है। लेकिन लोगों की, आपने जो बोला ना, माइंडसेट के हिसाब से होता है उनका बिहेवियर। हमें ना, अगर वो लोग आम इंसान के तरह नहीं देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम उधर से शुरू होता है ना। ये तो कि है। हमें, जैसे आपने बोला कि किसी के वजह से किसी का देहांत हो गया, लेकिन आप पे इल्जाम लगाया, हाँ कोई वो मतलब जनरली बेसिस वो ही। सोचते हैं ना कि ये है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव पर्सन। जनरली लोगों की थॉट ये है कि इनकी सोल ही गलत है, अरे ऐसा बाबा, हाँ हाँ। सोचते हैं, ये लोगों की थॉट रहती है। ये जी पर्सन यदि अगर ट्रांस पर्सन है तो वो सही नहीं है, वो जी साथ में फैमिली के साथ रहना नहीं चाहिए, या जी फिर वो उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके जैसे हम हो जाएंगे, हाँ, किसी भी चीज बिल्कुल की थॉट्स बिल्कुल है। जी। और वो हमारे खुद के परिवार, हमारे खुद के खानदान में भी हो सकता है, हाँ ऐसा नहीं कि कोई हाँ बाहर वाला बोल रहे हैं ना, हमारे घर के लोग भी ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे हाँ, सोच सकते गलतफहमी हैं, होता है ना सोचते भी हैं, उनको। यहाँ तक कि सोचते भी हैं। हम्म, वो भी और अवेयरनेस नहीं है ना, लेक ऑफ अवेयरनेस है हाँ, लोगों के मन में। वो चीज पहले से जो बोलते हैं ना, जैसा बीज बोया हुआ है पहले से, तो वैसे ही वृक्ष बनेगा। जी तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका फैमिली में एक्सेप्टेंस कैसा है? आपको कोई इतराज नहीं है तो आप बता सकते हैं।
हाँ, फैमिली में? नहीं समझते हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहते थे कि एजुकेशन लो अच्छा। और सही चीजें करो, तो वो सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि आप एजुकेशन लो, अच्छे से वो करो, अच्छी चीजों पे मैं इन्वॉल्व रहूं। तो ऐसे ही मैंने हम लोग कोविड के टाइम पे मैंने एक हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया था, मतलब डिसेंट फ्रेंडशिप के नाम से, नॉर्मली किया था, बट वो इतना अच्छा हमारा चला था, मतलब 3-4 ग्रुप हमने करे थे बट डिलीट कर दिए थे। उसके बाद फिर एक एक लास्ट ग्रुप जो अभी तक चल रहा है, उसके हम्म, थ्रू हमने बहुत लोगों को सेंसिटाइज किया था। बट मतलब हमने नॉर्मली, हम कोई प्रोफेशनल थे नहीं, बट हमने जो जो फेस की ना वो और दूसरे लोग ना फेस करें। जस्ट मतलब यदि कोई कोई प्रॉब्लम हो तो हर टाइम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, इतना जी, पैसा बिल्कुल। हर कोई पे नहीं कर सकते। जी जी। तो वो हम लोग एक दूसरे को, जो मैंने सीखा मैंने अपनी लाइफ से चीजों से, तो उनको शेयर करते थे, वो अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर करते थे, उनका कुछ सोल्यूशन मैं कर दूं, कुछ मेरा वो करते थे। ऐसे करते करते हमने काफी लोगों को डॉक्यूमेंट को लेकर के भी हमने वो भी अप्लाई करवाए। उसमें से सबसे लास्ट में मैंने अप्लाई किया डॉक्यूमेंट। अच्छा, बढ़िया। तो आपने खुद बाकी ट्रांस लोगों को ऐसे इमोशनल सपोर्ट पे हाँ, देते थे, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन कोविड टाइम पे ये बहुत ज्यादा है, मतलब जितना हमारा कम्युनिटी, ट्रांस लोग, क्वियर लोग, जो भी है आप बोलेंगे, लेस्बियन लोग, जो भी है, हमारा कम्युनिटी एक दूसरे का हाथ जैसे पकड़ा ना, मतलब हाँ, दूर से भी हमारा कम्युनिटी जितना किया पूरे इंडिया में, उतना कोई और नहीं किया। हाँ, मतलब हमने अपने लोगों के लिए किया, और दूसरे जो भी हैं, दलित होंगे, मुसलमान होंगे, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा था पहले लॉकडाउन में। और उनको, अगर वो गरीब है लेकिन वो इंसान है, तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक दलित ट्रांसमैन दोस्त है जो बेंगलुरु में है, हाँ जी, वो कोविड लॉकडाउन में वो बोल रहे थे, और जो रूरल एरिया में थे, मतलब ना इतना अच्छी तरह से बोले, उन्होंने बोला जो सर डिस्क्रिमिनेशन हम ट्रांस लोग, क्वियर लोग, हमेशा जो भी है, लॉकडाउन नहीं है, कोविड नहीं है, जो भी है, बिल्कुल नॉर्मल दिन में भी इतना हम डिस्क्रिमिनेशन और इतना एक्सक्लूजन फेस करते हैं ना, जी, वो अभी शायद सब लोग समझ रहे हैं। क्योंकि अभी तो सब जो मार्जिनलाइज लोग हैं, सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हमारा कम्युनिटी बहुत, हम गर्व से बोलेंगे कि जो भी स्टेट था, जो भी सिटी था, जो भी टाउन था, हमारे लोग बाकी मार्जिनलाइज लोग को, जैसे हाँ हमारे कम्युनिटी या दूसरे कम्युनिटी के हैं, हाथ बटाया, हाँ, और हाथ बढ़ाया और ना ऐसा सपोर्ट किया, इतना कभी नहीं था और किसी ने नहीं किया। हमने देखा, जैसे आप बोल रहे हैं ना, बहुत जगह ऐसा हुआ कि खुद स्ट्रेस, खुद डर में है, खुद दुख में है, क्योंकि काफी लोग आइसोलेटेड भी थे, है ना, जी, क्योंकि उनके लिए कोई एग्जैक्टली जो सेफ स्पेस नहीं था। लेकिन हमने अपने डर को काबू में रख के बाकी लोगों को जैसा हमने सपोर्ट किया ना, बहुत बढ़िया बात। आपके बारे में हमें बहुत गर्व से बाकी लोगों को भी बताएंगे, बहुत खुशी से, बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से, कि आपने भी ऐसा किया कि बार बार। और आपने जो ऐसे बोला ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से बोल दिया आपने, सबका करवाया और बाद में आपने अपना करवाया ना, ये यही एक लीडरशिप में क्वालिटी है। और मेरी जो फ्रेंड है अभी यहाँ पे नीचे, जिनको मैं टैग किया मैंने, जो मेरे को इन्होंने भी मतलब ये कि हम लोग जनरली सोशल प्लेटफॉर्म पे ना, हम लोग हम्म, लोग क्वेश्चन करते थे कि आप क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं कि आप कैसे वो कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम, हम लोग एक एक क्वेश्चन शेयर कर पूछते थे एक दूसरे से, फिर उसके बारे में जो जिसको इन्फॉर्मेशन हो या जो प्रॉब्लम हो वैसे करके डील करते थे एक दूसरे से। हम लोग ऐसा करते थे, जनरली हम बात भी करते थे तो हम ऐसी तरीके से करते थे। जी हालांकि वो कमाउट नहीं है, वो अपने इसमें नहीं है, बट एक कि क्या होता है ना कि प्रॉब्लम होती है फैमिली और फाइनेंशियल भी, बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे हैं वही, मतलब उनको ही बहुत सी चीजें, मतलब बहुत से ऐसे लोग जो नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन है काफी उनके पास में भी, बट वो एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर वो नहीं कर पाते हैं, और भी अदर इश्यूज के कारण। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जी जी। और आपने दूसरी जो बात की है ना, सेंसिटाइजेशन, उसके लिए आपने जैसे बोला ना, कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए, बस हमारा बात, हम आप अच्छी तरह से, बहुत सिंपल तरीके से बात बाहर रखना है, खुला रखना है, अगर हमें कोई इतराज नहीं है हाँ तो। जी, और और लोगों को समझाना
जाएंगे ना तो ही बेस्ट तरीका है सेंसिटाइजेशन करने का कि हाँ, क्योंकि मतलब अभी मद्रास हाई कोर्ट में लास्ट मंथ फरवरी में एक ऑर्डर पास किया कि जब भी डॉक्टर लोग, नर्स लोग, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम में है, उनको हमारी कम्युनिटी के बारे में जब सेंसिटाइजेशन हो रहा है, बहुत अहम बात ये है कि हमारे कम्युनिटी लोग ऐसे सेंसिटाइजेशन सेशंस में बिल्कुल होना चाहिए और हमारे निजी जीवन के बारे में हमसे सुनना चाहिए, हमसे जानकारी लेना चाहिए। जितना भी बड़ा डॉक्टर हो, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो भी है, लेकिन अगर वो हमारे कम्युनिटी के बारे में नहीं जानते तो सिर्फ जो भी बुक, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बुक्स गलत है या फिल्म में जो बहुत सारे फिल्म तो नेगेटिव ही दिखाते हैं, हमसे जो अगर वो सुनेंगे और सीखेंगे ना, अगर उतना ह्यूमिलिटी है उसमें, वो बढ़िया है। और ये बहुत अहम बात है कि क्योंकि कई डॉक्टर लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत लोगों से क्या बोला, बहस भी किया है, बहुत सारा चर्चा भी किया है। आप लोग अपने आप को एक्सपर्ट कैसे मानेंगे जब आप हमारे बारे में एक दो चीज भी नहीं जानते? सिर्फ हमें ट्रैफिक सिग्नल में देख के या कोई ना बस में देख के आप बोलेंगे कि आप हिजड़ा लोगों को जानते हैं, ट्रांस लोगों को जानते हैं आपको, और उनके लिए एक क्या मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिसाइड करेंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा रियलिटी क्या है, हमें क्या चाहिए, हम अच्छी तरह से जानते। शायद हमारे पास एमबीबीएस डिग्री नहीं हो या एलएलबी का डिग्री नहीं है, फिर भी हम शायद 10th क्लास का ही होंगे, लेकिन हमारे बारे में तो हम जानते हैं और हमारे लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए हम जानते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। आप बोले थे कि हाँ, कि हमारा सेंसिटाइजेशन, हमारे बारे में हमें बात करना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए। शायद अगर वो एमपी एमएलए हैं या जो भी है, साइकोलॉजिस्ट है, लॉयर है, हमारे निजी मामले में अगर वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमसे जानकारी लेने की जरूरत है ना? और आप जैसे यंग, वाइब्रेंट और बहुत आप क्या इज्जतदार, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आप पे हम दबाव नहीं डाल रहे, लेकिन हम बहुत प्यार से बोल रहे हैं। आप जैसे लोगों से ही सुनना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि ना जैसे बोल रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बहुत अच्छी बात बोल, आप बहुत अच्छी बात बोल, सॉरी कभी कभार मेरे हिंदी में लिंग इधर उधर हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमारा लिंक तो हमेशा फ्लूइड रहता है ना, एक ये नहीं वो है। हाँ, तो कई बार ना छोटे शहर के लोग, ऐसा नहीं कि वो छोटे हैं, छोटे मन के हैं, छोटे विचार के हैं ना, ऐसे भी हो सकते हैं पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है, इतना ओपन माइंडेड, इतना फॉरवर्ड है, इतना प्रोग्रेसिव है कि शायद वो दिल्ली में जो भी है एम्स में बैठे हुए बड़े स्पेशलिस्ट या सुप्रीम कोर्ट लॉयर से भी बहुत अच्छी तरह से छोटे शहर वाले भी बात बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये भी बहुत अहम बात है कि आप बोल रहे हैं कि आप कहाँ से शुरू हुआ आपका जिंदगी ना। हाँ, और सॉरी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके बारे में, जैसे हमारे सेंसिटाइजेशन हमें क्यों करना चाहिए? सेंसिटाइजेशन ऐसा है किसी की अभी टीजी कार्ड, गवर्नमेंट ने टीजी कार्ड के लिए मतलब टीजी कार्ड मिल रहे हैं, हम लोग को बन रहे हैं, तो उसके लिए भी ना उनके लिए भी ट्रेनिंग देनी चाहिए उस टाइप से। जी जरूरी, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, उनको खुद ही नहीं पता उस चीज के बारे में। वो जी बिल्कुल ना तो रहे हैं, बट वो फिर भी उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लोगों के सामने पूछते हैं, जो कि चीज कॉन्फिडेंशियल होती है ना, कि साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट के बीच की बात होती है, हमारी जो प्रॉब्लम है, तो वो ना वो सबके सामने ओपनली पूछते हैं, मेरे से पूछा ओपनली सबके सामने। वो चीज तो गलत है, उस टाइप से जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग उनको होना चाहिए, उनको अवेयरनेस होना चाहिए। वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत चीज है वहां पे। बढ़िया बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट। यही हम एक्चुअली 15 साल से बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत हम मूवमेंट में 15 साल से ज्यादा रहे हैं। आप ना वही हम बोल रहे थे ना कि 2 मिनट पहले कि आप कानून नलसा जजमेंट पास किया, बढ़िया। आपने टीजी कार्ड इंट्रोड्यूस किया, बढ़िया। कुछ जगह
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, बढ़िया बढ़िया, ये सब है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्यों जीरो या नेगेटिव में है? क्योंकि जो जिनका जिम्मेवारी है वो डॉक्यूमेंट कराना या वो एप्लीकेशन लेना, उनको सेंसिटाइज क्यों, बिल्कुल जानकारी ही नहीं है स्कीम के बारे में। कई बार हम स्टेट लेवल पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएंगे या डब्ल्यूसीडी में जाएंगे ना, हमारे स्कीम्स के लिए छोटे जो 2-3 हैं, उनके ऊपर तो वो बिल्कुल जानते ही नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करते। सिर्फ आप जैसे बोल रहे हैं ना, गाली देते हैं या ऐसा कुछ, मतलब ना घूर के देखते हैं या भगा देते हैं, अब ऐसा ही जैसे कि होता अभी भी सोचिए, दिल्ली ऐसी जगह में से अब मैं पहले, मैं जब यहाँ पे दिल्ली में मतलब मेरा ट्रैवल करना होता था ट्रीटमेंट के लिए, चंडीगढ़ से दिल्ली होता था बाय बस या ट्रेन से। है। तो ना यहाँ पे मैंने पूछा लोगों से कि मुझे ये मेट्रो कहाँ से मिलेगी, तो लोग वॉइस को सुन के दूर हट जाते हैं, जैसे कि हम लोग पता नहीं अलग ही है। जी तो जी जी इतना मतलब वो चीज़ है कि हमें किसी से पूछना हो तो भी लोग हमें बात ही नहीं करना चाहते, गाइड नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम पढ़े लिखे हैं यदि, तो हम खुद अपनी चीजें खुद कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं किसी की भी। तो हम अपने, यदि हमें जो नॉलेज है हम अपने हिसाब से चीजें कोशिश करते हैं। फिर मैंने किसी से पूछना बंद करा, अपना खुद से नेट पे सर्च करके कि हाँ ये रूट यहाँ का है, और खुद से अपना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे जाना है आपको। तो वो चीज है, कई बार ये चीज होती है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो नहीं इतना कर पाते हैं चीजें, तो प्रॉब्लम होती है। तो लोग मतलब लोग समझते नहीं है, समझना चाहिए लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग। यदि वो चीज उनके साथ हो तो फिर क्या होगा, जी। अपने आप को भी उस जगह पे रख के सोचना चाहिए। हाँ, बहुत वेरी वेरी गुड पॉइंट ना। हमें फर्स्ट ह्यूमन बीइंग मानना चाहिए, है ना। सब में कमी होता है, सब अलग होते हैं। क्या है कि उतना मतलब ना, आप जैसे बोल रहे ना, कई बार हट जाते हैं। हम अगर बस में जा रहे हैं या कहीं रोड पे जा रहे हैं, हमारे बाजू में वो चलना नहीं चाहते या ऐसे घूर के देखते हैं जैसे हम ना कोई और प्लैनेट से आए हैं करके, हम इंसान नहीं है करके। हाँ, लेकिन हम वापस उनको ऐसे नहीं ट्रीटमेंट करते ना। हम सबसे एक ही तरह से बात करते हैं, एक ही तरह से, और उसके वजह से लेकिन फिर भी उनसे इज्जत नहीं मिलता ना। और उसकी वजह से हमारा ह्यूमन नेचर है कि टॉलरेंस लेवल एक होता है ना, उसके बाद हम थोड़ा हम आ, मतलब थोड़ा चिल्लाया, थोड़ा उनको वापस घूरा तो उनको अच्छा नहीं लगता। अब जैसे कि लोग बोलते हाँ हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करो, एजुकेट हो गए तब जाकर लोग रिस्पेक्ट, ऐसा बहुत सी जगह देखिए कि लोग पढ़े लिखे हैं, अपना खुद का, एक मेरे फ्रेंड यहाँ पे भी है, तो वो क्या है कि नाम तो मेंशन ऐसा नहीं कर रही, यहाँ पे नीचे जो ना आ रहा है नाम लास्ट, तो उनके साथ में ऐसा है कि वो भी अपना करते हैं, अपना खुद के दम पे अपना कोचिंग अपना करते हैं इनकम। तो भी फैमिली बोलते हैं ना कि आप यदि खुद सेल्फ डिपेंड हो गए तो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, समझेगी, सोसाइटी। ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ है कि यदि आप एजुकेटेड हो गए तो ही समझेगी, उनको नहीं समझना है तो वो कभी नहीं समझेगी आपको, चाहे आप कुछ भी कर लो। वेरी सीधी वेरी, सी ये चीज है। या वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी करेक्ट। यस ना, वही ना, हम बार बार वही बोल रहे हैं ना कि इट इज नॉट अबाउट वेदर यू आर फ्रॉम अ बिग सिटी और अ स्मॉल टाउन और अ विलेज। इट इज नॉट वेदर you have MBA degree or law degree or medical degree something na. It's about mindset. नहीं, that is so important, and which is a very good contrast ना। आपने खुद अपनी जिंदगी में देखा है ना कि आपके is better in some ways than Delhi, right? कि you know it's this. And अभी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो आपको कविता लिखने का कब से आपने शुरू किया, थोड़ा बता मैंने सकते हैं उसके बारे में? काफी टाइम मतलब मुझे तो कोविड से पहले से स्टार्ट की थी मैंने नॉर्मली कविता लिखना। फिर एक बार क्या हुआ था कि जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थे, उस टाइम पे पार्ट्स वो था, मतदाता जागरूकता दिवस था 25 जनवरी को जो होता है, उससे पहले एक कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मेरे सर लोगों ने बोला था कि आप पार्टिसिपेट करो। मुझे तो लगता नहीं था कि मेरा कुछ ऐसा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, बट एक मैंने वहां पे अपने खुद से स्लोगन लिखी मैंने बना के। पहले थोड़ा बहुत लिखती थी कविता वगैरह, फिर मेरे माइंड में अपने आप आया तो मैंने ऐसे राइटिंग खुद से की, हिंदी ऐसे राइटिंग थी। और उसके बाद ना
यही है कि पार्टिसिपेट किए तो 3 लोग थे हमारे कॉलेज से, लेकिन मेरा हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सेकंड आया ऐसे राइटिंग में, हिंदी ऐसे राइटिंग में और स्लोगन में, उसमें। तो फिर उसके बाद से मुझे सर्टिफिकेट मिला कलेक्टर के थ्रू, तो अच्छा लगा, 2 सर्टिफिकेट मिले। उसके बाद फिर मोटिवेशन बढ़ा, तो मैं और भी पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दी। काफी वाओ, सारी वेरी गुड। लिखी है, मैं कहीं शेयर नहीं की मैंने अभी तक, बट है कि मेरे पास बहुत सारी लिखी है मैंने। अलग अलग जगह ओपन माइक इवेंट में, चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी घर से, तब मैंने वहां पे अपनी पोएट्री बोली थी। फिर अलग अलग जगह पे भी मैंने, काफी जगह अपने डिपार्टमेंट में भी बोले थे, ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट में भी। तो वही है, करते रहते तो ऐसे। ये गणतंत्र दिवस उस दिन आपने शुरू किया? हाँ। हाँ नहीं, उस दिन मिला था, अवार्ड मिला था 25 को अच्छा, शायद मिला था। ओ बढ़िया, उससे तो डिस्ट्रिक्ट पहले लेवल। था, हाँ, उससे पहले ऐसा था कि मैंने पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरा उसमें सेकंड और थर्ड था, स्लोगन में और ऐसे राइटिंग में, दोनों में। कॉलेज लेवल पे, हाँ, मतलब कॉलेज सभी कॉलेज, लेवल पे। कॉलेज हाँ कॉम्पिटिशन था? हाँ। अच्छा। ओ, तो आप कुछ बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे किसके बारे में लिखा है आपने कविता या स्लोगन? नहीं, मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप की स्लोगन्स भी हैं, पोएट्री भी है, सब चीजें हैं। तो आप पढ़ेंगे? आपको कोई एतराज नहीं है क्या? हाँ, हाँ। एक मिनट में। हाँ, हाँ बिल्कुल, अपना वक्त लीजिए। ये एक सरप्राइज है। अच्छा, हमें नहीं मालूम। शायद आपने ये दिसंबर में ये लोग क्या बोलते हैं वो उनको, अभी गुप्ता वो सब, उन्होंने ऑनलाइन एक इवेंट किया। ये मिसफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग दिसंबर 2024 में ऑनलाइन एक इवेंट किया था, और आपने पढ़ा क्या? आपने कविता उसमें एक जूम मीटिंग किए थे। हाँ जी, हाँ जी, मिस्टर, वो उसमें वो मिसफिट, वो, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, अभी गुप्ता, हाँ हम, हाँ वो सब, शमन गुप्ता, हाँ जी, हाँ जी। वो सब। हाँ, आपने शायद कमलेश, कमलेश करके पढ़ाई। न्यूज के हाँ, अंदर। हाँ, हाँ, क्योंकि आपका आवाज अभी जान पहचान जैसा लग रहा है। आपने बहुत कविताएं पढ़े थे ना उस जूम हाँ हाँ, मीटिंग में। पढ़ी थी उसमें, हाँ मैंने। हाँ, मुझे बहुत अभी याद आ रहा है। तो हाँ इसीलिए हम सोच रहे थे, आप संजना, आपका आवाज और आप कविता, हाँ। तो आपने बहुत 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 खुशी हुई आपका। तो अभी आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो बहुत हम, अच्छा लगेगा हमें। पोएट्री वैसे तो याद नहीं है, मैं निकालना पड़ेगी आप मुझे। रेडी? कोई क्या बोलते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। अगर है आपके पास अभी तो पढ़ सकते हैं, छोटा मोटा, या कुछ स्लोगन आप। लोगों ने आपको सुनाते हैं, हम्म, जैसा कोई नारा जैसे था क्या? बूंद बूंद से बढ़ता है पानी का घड़ा, यदि नहीं बचाए पानी तो जल संकट है बढ़ा। ऐसे वाह। मैंने ना जल के ऊपर से लिखी थी कुछ। और मैं जो भी मेरे मन में थॉट्स रहती है, जैसे कि बिजली को लेके है, कि अ, एक मेरे पास थी, हम्म, याद नहीं आ रही थोड़ी मेरे को, क्योंकि मैंने ना एक मेरी डायरी में लिखी थी। अब मैं क्या वहां से शिफ्ट करी हूँ ना जब, तो थोड़ा डायरी शायद यहाँ पे कहीं रख दी मैंने उसकी, तो और है, मैं याद करती हूँ। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तब मैंने ना जब बहुत ज्यादा परेशान होती थी, तब तब मैंने पोएट्री लिखी थी। और जब ज्यादा हैप्पीनेस फील थी, तब मतलब तब लिखती थी मैं। पहले इतनी सारी लाइन्स आती थी मन में कि मतलब आप डायरी लेके बैठे रहो तो पूरा दिन लिखते रहो, मतलब इतना ज्यादा हम्म, आती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा चीजें डाइवर्ट हो गई, बहुत सी चीजें, तो फिर थोड़ा सा कम हो गई थी। अब एक मेरी पहली पोएट्री थी, असफलता से मत डरो, कदम आगे बढ़ाते चलो। ओ, असफलता ही को जीना सिखाती है, असफलता ही व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। जीवन जीना है तो मार्ग की बाधाओं से मत डरो, करना है तो मुकाबला उनका तुम डट कर करो। क्योंकि असफलता से वाह, डरते तो कायर हैं, और जो मुसीबत से लड़ते हैं वही सफलता के रास्ते पे चलने के लायक हैं। इसलिए असफलता से मत डरो, कदम आगे बढ़ाते चलो। ये मेरी फर्स्ट पोएट्री लिखी थी मैंने। वाह, इतना मतलब आसानी से बोल दिया, लेकिन कितना भावना है उसमें, बहुत जज्बात है। और एक तरफ एक सीख भी है ये, कि ना, थैंक यू। हमेशा क्या है, सब
लोगों के जिंदगी में असफलता होती है, लेकिन हम वो कैसे फेस करेंगे, कैसे उसको पार करेंगे ना, वही एक सफलता है ना। ऐसा नहीं कि हमें कुछ अवार्ड मिलना, डिग्री मिलना, सब रिकॉग्निशन मिलना, एप्रिसिएशन मिलना बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर वो नहीं मिले भी फिर से हम अपने काम करते हैं ना, वो भी हमें लगता है कि वो बड़ा सफलता है, क्योंकि हम इतना हमारे अंदर हमारा क्या बोलते हैं आत्मसम्मान के थ्रू और एक्चुअली अपनी बातों को लोगों को समझा रहे हैं, या किसी और को यदि वो पढ़े तो उसको भी उस चीज से कुछ तो सीखेगा उस चीज से, ऐसे करके तो काफी वो जरूरी नहीं कि यदि आपको अवार्ड ही मिले तो वही वो चीज है, किसी और को उस चीज से यदि सीख मिल रही है, कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बहुत लोगों को जरूरत होती है मोटिवेशन की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा सफलता है कि आपके वजह से आपने अब इतने मुश्किल, इतने चुनौती के बाद ही जिंदगी जी रहे ना। मुझे लगता है वो हर एक जो दुनिया में क्वेयर, ट्रांस, जो इंटरसेक्शनल है, वो बहुत सारे बाकी मार्जिनलाइजेशन है, वो खुद एक दिन से दूसरे दिन के जैसे ना अपनी जिंदगी का क्या बोलते हैं नाव पार करके लाते हैं ना, वो ही एक बढ़िया चीज है। कोई लोग इतना मतलब आपने खुद और मैंने भी डिप्रेशन फेस किया है, बहुत मेंटल इश्यूज फेस किया है कि ना हम क्यों जी रहे हैं, जीने का मतलब ही नहीं है, ऐसा ना लास्ट तक जाने का ये करते हैं, लेकिन कभी कभार उसको पार करके हम जीना जीते हैं ना, वो ही बहुत बहुत बड़ा सफलता है और बहुत बहुत सीख है। और उसकी वजह से जैसे आपने एक बढ़िया बात बोली, वो ही बाकी लोगों को भी मोटिवेशन और इंस्पायर करता है, वही सबसे बड़ा क्या बोलते हैं प्राइज है, रिकग्निशन है ना, कि हमारे वजह से हमारे कम्युनिटी लोगों को भी बढ़ावा मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, हाँ जी रहे हैं ना। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं आज नहीं तो कल हम चले जाएंगे, दुनिया में नहीं रहना है ना। हमारी कम्युनिटी तो कितने लोगों के मैंने देखा है, सुना है, मतलब हाँ बहुत पब्लिकली भी लोग जो होते हैं और सडनली उनको पता नहीं क्या हो जाता है, और जिसे ना कि लेकिन वो ही बड़ा सफलता है। बहुत बढ़िया तरह से, बहुत शायद एक तरह से आसानी लग रहा है, लेकिन अच्छा बहुत क्लैरिटी के साथ आपने जो किया ना, मतलब मुझे वैसे भी बचपन से पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन एक बहुत अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए कि आपने अपना पोएट्री याद किया और आपने सुनाया सबको, हमें और जो भी बाद में देखेंगे सुनेंगे। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। और दो तीन चीज है संजना जी, आपको थोड़ा वक्त है अभी 5-10 मिनट बात करने के लिए? हाँ जी, है वक्त है। हाँ ठीक है। तो आपने अभी इतने काम आप कर रहे हैं, मतलब वॉलंटियर जैसे, हाँ, लेकिन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ सेंसिटाइजेशन दे रहे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे क्या बोलते हैं पीयर सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट जैसे दे रहे हैं, हाँ। लेकिन मतलब नालसा जजमेंट होके अगले अप्रैल 15 को 12 साल हो जाएगा, है ना। और जो आईपीसी 377 है वो उसको ये करके मतलब रीड डाउन करके इस सितंबर में से 7 साल होंगे, हाँ। और बहुत सारे स्टेट लेवल वेलफेयर बोर्ड बना है, कमेटी बना है, पॉलिसी बना है, काउंसिल बना है ट्रांस लोगों को, वो सब। लेकिन ऐसे क्या है कि ये सिर्फ माइंडसेट का बात है क्या, कि जो भी है, और हमारे लोग इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर रहे हैं ओपनली होके, आजकल बहुत सारे लोग ओपन अप हो रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और आप जैसे लोगों को देख के मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलके और भी ओपन अप हो रहे हैं, है ना, सुन के आपको। हाँ, फिर भी एक क्या है कि हमारे लोगों को एक ही जिले में भी ले लीजिए, कितने लोगों को जॉब है, बहुत कम। हाँ जी। दिल्ली में लोग हैं, आपके जिले में लोग लेंगे या चंडीगढ़ में,
प्राइड मार्च होता है, ठीक है, कभी रेनबो मंथ या जो क्या बोलते हैं प्राइड मंथ प्राइड होता मंथ है। होते हैं, हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, कॉलेजेस में, कैंपस में या मोहल्ले में कमिटी होता है, प्राइड कलेक्टिव, प्राइड ऑर्गेनाइजेशन, प्राइड सॉरी रेनबो ऑर्गेनाइजेशन, क्वियर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांस अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंडिया में लेंगे तो रजिस्टर्ड बोलेंगे, अनरजिस्टर्ड बोलेंगे, हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन 100 से ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर भी ये क्या है, ये क्या माइंडसेट का प्रॉब्लम है क्या कि जो भी सरकार बोलेंगे या जो भी है सिस्टम बोलेंगे, हम लोगों को एक दो जॉब नहीं मिलता ठीक हाँ से। जी, हाँ, अगर वो भी क्वालिफाइड है, आप जैसे लोग मतलब ओवर क्वालिफाइड है, आपका 2 PG डिग्री है, हाँ हाँ, जी, लेकिन कल आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कभी गारंटी नहीं है कि हाँ आपको जी, पहले इज्जत से देखेंगे। जॉब देने का बात अलग है, हाँ मिल जी, सकता है, लेकिन इज्जत से आपको ट्रीट करेंगे क्या, आपको ऐसे जैसे बोल रहे हैं ना इंसानियत से करेंगे क्या, हाँ जी, वो उसका कोई गारंटी नहीं है ना अभी भी, हाँ जी। है ना। आपको क्या लगता है वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है क्या? मैम वो क्या कहते हैं एक्चुअली ना, सॉरी मैंने ना, हाँ जी, बोल रही रिताश, हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको प्रोनाउंस करने का मैं थोड़ा सा नहीं नहीं चीजें वो हो जाती है कोई बात नहीं, रिताश बोल सकते हैं आप, रिताश बोल सकते हैं, हाँ। क्या आपने नाम बताया आपने? अ, रिताश, रिताश, RITASH, हाँ हाँ, रितेश। रिताश, रिताश। RITASH। हाँ जी, तो रिताश जी, ये है कि ना यहाँ पे ऐसा है, किसी की यदि हम स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में यदि पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा इंट्रोडक्शन होता है ना, एक सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि आपका नाम ये है, आप यहाँ से हो, आपका, तो ये सब चीजें उस टाइप से ना, जब ऑफिस लेवल पे चीजें होती हैं तो ठीक है, ये तो नेम वगैरह इंट्रोडक्शन है। यदि किसी के बारे में जेंडर को लेकर नहीं पता है तो वो अवेयरनेस सबसे जरूरी है। यदि वहां पे वो प्रॉपर चीजें होंगी, और फैमिली वगैरह में भी फैमिली सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी या उनको बताया नहीं जाएगा, जैसे किसी सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ाते हैं, तो यदि इसके बारे में हम बताएंगे कि ये सब्जेक्ट ये है आपके कोर्स में, या आपको ये चीज में ये चीजें है चीजें, उस टाइप से एक पर्सन के बारे में भी, एक आइडेंटिटी के बारे में भी लोगों को समझाना बहुत जरूरी है, जो नहीं पता है किसी को, कैसे उनको समझ पाएंगे लोग, वो चीज का प्रॉब्लम है। तभी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही बोलेंगे, गर्ल बॉय बोलेंगे, बस वो हाँ जी, वही ना। बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि कोई अपना जेंडर चूज कर सकता है, हाँ जी, डिटरमिन कर सकता है, बाद में बदल सकता है, कभी नहीं बोलेंगे ना। वही आप बता रहे हैं ना हाँ जी, जी। जी, मतलब पूरा टाइम मैथ्स या साइंस या वो जो भी है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जो भी सिखाने में ये होते हैं, उस्ताद होते हैं, लेकिन ये जो सिंपल रियलिटी है, अहम बात है, वो नहीं बताते ना। वही आप बोल रहे हैं ना। क्योंकि हाँ, अभी भी जैसे कि एजुकेशन उसमें एमपी में या कहीं पे भी बड़े बड़े एग्जाम्स में अभी भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं है। मैंने जिस कॉलेज से मास्टर डिग्री की थी ना, अब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री की थी, एमपी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी ने तो अप्लाई दिया है कि हाँ मेल फीमेल का ट्रांस का ऑप्शन देते हैं वो, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने बैचलर डिग्री की थी, वो वहाँ का सबसे छोटा कॉलेज था हमारे सिटी का, बट जो सबसे बड़ा कॉलेज था एलबीएस कॉलेज, तो वहाँ पे उन्होंने ना ट्रांस का ऑप्शन ही नहीं दिया। मैंने जब बाद में, जब मेरी मार्कशीट वगैरह लेने की कुछ इशू था मेरे साथ में, तो उसके लिए जब मैं गई ना, तब उनको पता चला कि मेरे बारे में पहले नहीं जानते थे वो, फिर समझ गए थे, तो फिर उनसे मैंने ये चीज़ बोली कि ऐसा ऐसा यहाँ पे आपको करना चाहिए उस चीज़ को लेके। तो ट्रांस का ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पे, कॉलेज लेवल पे भी, बड़े कॉलेज है उसमें भी नहीं है। उसके लिए भी हमें पिटीशन लगाना पड़ेगा, मतलब हर चीज के लिए आप पिटीशन लगाओगे तभी चेंज होगा क्या। जबकि जब जी, यूनिवर्सिटी अलाउ करती है ना, तो फिर तो नॉर्मल कॉलेज को उस बात को मानना चाहिए ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी बड़ी है, कॉलेज तो कॉलेज के ही उस पर चल, मतलब कॉलेज को वो इंस्ट्रक्शन दे सकती है वो, तो वो नहीं करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करना चाह रहे उस पर। हाँ हाँ, या बहुत अहम बात और बहुत अच्छी तरह से बोला आपने कि वही है। और और ये एक्चुअली नलसा जजमेंट में 12 साल के पहले बोल दिया। और ये नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल से ही ऐसा होना हाँ चाहिए जी, एक्चुअली, है ना। और आपने जो बोला, किस किस बात पे बार बार हम पिटिशन कितने बार लगाएंगे, है ना। और वो पिटिशन अगर लगाया तो कितने
साल होंगे फिर से उसको रिजॉल्व होने सही में। बात हाँ, तब तक हमारा आधा जिंदगी ही खत्म हो जाएगा। है, मतलब वही जो ऑलरेडी चीज है, प्रोविजन है, और जो भी लॉज में, जजमेंट्स में 10-15 साल से उसके बारे में ही फिर से बार बार हम एक एक जगह पे जाके उसके लिए कितना लड़ना पड़ता है ना, उसमें ही इतना हमारा क्या बोलते हैं, हमारा पूरा टाइम वक्त उसी में चला जाता है ना। और जो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं नेशनल ट्रांसजेंडर पोर्टल, ओ बाप रे, मैंने देखा है किसी को कार्ड मिलता है हाँ, और कहीं और जॉब के लिए, कुछ और काम के लिए, कुछ भी, नहीं बस कोई चीज के लिए नहीं है। एक स्टेट से और एक दूसरे चीज स्टेट जा। ये भी है, हम्म, एक चीज ये भी है रिताज जी, हम्म, कि ना जैसे कि अब टीजी कार्ड जो है वो एक आईडी कार्ड है, लेकिन टीजी सर्टिफिकेट जो देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू जो मिलता है, हम्म, डीएम के थ्रू, तो वो उसमें उससे हम डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं अपने। बट वो क्या बोलते हैं, जो पैन कार्ड के लिए अभी एक प्रॉब्लम आई थी कि ऐसा ट्रांसजेंडर हम्म। पैन कार्ड को वो अलाउ अप्लाई ही नहीं करने दे रहे थे। फिर एक ओ, किसी ने, बिहार की कोई थी, उन्होंने पिटीशन लगाया उसके ऊपर, फिर जाके उन्होंने मतलब जब वो रिटर्न में है, गवर्नमेंट के थ्रू सारी चीजें हैं उसमें, तब भी वो नहीं मान रहे हैं, कोई पिटीशन उसकी भी लगानी पड़ी तब जाके मतलब हाँ, वो चीज एप्लीकेबल हुई है। जी जी। और एक बात मैंने बहुत बार अभी हम सुन रहे हैं कि हम जिस स्टेट में रहते हैं, और नहीं तो जहाँ पे हैं जहाँ से हम ट्रांसजेंडर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके वजह से वो कार्ड का वैलिडिटी, नेशनल पोर्टल नेशनल कार्ड का मतलब क्या है? नहीं, आप एक स्टेट, ऐसा हाँ, है कि हम उसको अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं, एफिडेविट भी जी कहीं से जी बनवा सकते हैं, बट वो जी वेरीफाई होगा ना तो आपके डीएम के थ्रू ही वेरीफाई होगा, जी क्योंकि जी। आप वहां हाँ रहते हैं, तो वो हाँ वहां हाँ से इसको वेरीफाई करते हाँ हैं। पहले तो वेरिफिकेशन के लिए घर भेजते थे लोगों को, लोग डरते थे हाँ। कि हमने अप्लाई किया तो फैमिली हमें समझेगी नहीं, ओ, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इसलिए भी लोग बहुत डरते थे उसे करने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी, क्योंकि वो फैमिली को बुलाते हैं। मेरे को बोला था, मैं चंडीगढ़ से वहाँ एमपी जाना हुआ था मेरा, और मुझे बहुत परेशान किया था कि पेरेंट्स को लेके आओ, सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ, जबकि अरे डॉक्यूमेंट की जरूरत है ही नहीं, ना तो पेरेंट्स की जरूरत है उसमें। जी, इसके बाद तो हम पहले खुद अपने हिसाब आप, से चीजें डिसीजन ले सकते हैं। जी, पहले बात आप अडल्ट हैं, और नेशनल कार्ड का मतलब है कि आप कहीं से भी हो, उधर से अप्लाई होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। अप्लाई तो हो लेकिन जाता है, बट हाँ, डीएम के थ्रू ही वो, जब तक वो एग्जैक्ट, एग्री नहीं करते ना, जी, साइन उन्हीं के लगते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, तो ही वो तब जाके ही चीजें। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और मैंने और एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि अगर वो पर्सन माइग्रेट कर रहे हैं इंटरनली एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उधर कुछ जगह पे वो बोल रहे हैं इनवैलिड है, इधर आके फिर से करना पड़ेगा। वो गलत बात है। एक बार इश्यू हो गया मतलब उनका वेरिफिकेशन हो गया, क्यों है भी बार बार? एटमोस्ट एड्रेस का अपडेट करने का फैसिलिटी होना चाहिए, हाँ, ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा होना चाहिए, हाँ और फोटो वगैरह भी अपडेट का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन ये फैसिलिटी ऐसा नहीं कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो वो इनवैलिड है, ऐसा सुन रहे हैं हम। मतलब ना, जैसे हाँ, और बोलते हैं उसका वजह क्या है, पहले इस स्टेट में आईडी कार्ड मिलता था, अभी नेशनल हो गया, ये अलग है वो अलग है। मतलब इतना, जैसे आप बोल रहे हैं उनको खुद को जानकारी नहीं है या कंफ्यूजन है, लेकिन उसके वजह से हम पे वो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि एक्चुअली ना सब। सबको कंफ्यूजन क्रिएट कर, अब जैसे कि अभी तो एग्जैक्टली, पीजी कार्ड थे, ये तो डिफरेंट चीज होगी, लोगों के लिए बहुत नई चीज होगी, लेकिन जो आधार कार्ड बनवाते हैं ना, यदि हमने उसको सही से ध्यान से खुद से नहीं देखा ना, तो वो इंफॉर्मेशन देने के बाद भी वो गलत फील करते हैं। एक बार तो मैंने जब आधार कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने उसमें कुछ गलत कर दिया था, फिर मैंने सिस्टम पे देख के मैंने पूरा उनको चेक किया और उनको बोला कि ये गलत कर रहे हो आप, मतलब फिर मैंने बोला मुझे दिखाइए। ऐसे आधार कार्ड में भी था, कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ मतलब चेंज करना था, फोटो वगैरह कर दिया उन्होंने, डेट ऑफ बर्थ चेंज, अब वो परेशान हो रहे हैं कि तो लिमिट खत्म हो गई। मतलब सीधी सी बात है, इतनी भी अवेयरनेस नहीं है, इतना भी मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है लोगों के पास में, कि वो आधार कार्ड बनाने बैठे हैं, उनको खुद ही नहीं पता क्या करना है, जी मतलब कुछ भी क्लिक करके कुछ भी कर देंगे आप, मतलब वो डॉक्यूमेंट है, कोई ये तो नहीं है कि टाइम पास या कोई नॉर्मल चीज है। जी ये जी, बिल्कुल। बहुत वो गलत चीज है। हाँ हाँ, बिल्कुल ना। मतलब उनका काम ही वो करना है, और वो उतना अब भी। खुद के लिए तो मान लो गलती है बाय मिस्टेक, लेकिन दूसरे के लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, वो तो पूरा जी डॉक्यूमेंट ही खराब हो जी गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो गलती मानने के लिए, सुधारने के लिए बिल्कुल मानते वो नहीं अपने है। भी गलती कर
देंगे आपने फील करके दिया, तो उनको तो जी क्योंकि वो एग्जैक्ट वही ये चीज है, क्योंकि पावर है, हम लोग नहीं बोल सकते, तो ये चीज होती जी है। और जो बढ़िया। हिम्मत रखता है तो वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वो लड़ेगा, वो हम्म, बोल देगा, लेकिन और लोग नहीं कर पाएंगे जी ऐसा। बिल्कुल। ने बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी बोला। गलती उनका होता है और हम पे बोलते हैं कि आपने गलत किया, हम क्यों गलत करेंगे, जैसे ना वो मतलब ना बिल्कुल इंसान नहीं है और वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है। अपना काम खुद समझना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, और हमें लेके तो उनके माइंड में कोई बायस होगा और उसको हम पे, और उसकी वजह से हमारा बेसिक राइट्स, हमारा एंटाइटलमेंट्स डिनाई कर रहे हैं ना। और आप पढ़े लिखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिम्मत वाले हैं, हाँ, लेकिन कई लोग स्पेशली जो से 40s 50s में है एज उनका, जैसे, और मेरे से बड़ा, मैं ही 51 हूँ। अगर ऐसे लोग, क्योंकि पिछले पीढ़ी का कई लोगों को स्कूल या कॉलेज में हैरेसमेंट की वजह से ड्रॉप आउट करना था, तो अगर वो लोग सिर्फ हिजरत, ट्रांस मास्क लोग हो सकते हैं, हाँ, तो अगर वो लोगों को ये मालूम नहीं है कि गलती उनका नहीं है और ये लोग करना नहीं चाहते, ऊपर से कई बार अगर वो डरे हुए हैं, वो सब, वो कैसे जाके मतलब ना कि ये कार्ड करवा सकते हैं, या गलती दूसरा जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनका है, हमारे ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन ना ये बात तो ये लोग सुनेंगे ही नहीं इतना ना। तो अभी क्या है कि जैसे ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज्यादा हो गया आपसे बात करके और बहुत जानकारी मिली। थोड़ा हम अभी थोड़ी देर में हम खत्म करेंगे इसको, लेकिन कोई एक दो बात है क्या आप और भी शेयर करना चाहते हैं, जैसे आपने अपने पर्सनल लाइफ में चुनौती के बारे में बोला, बहुत सारे जो कम्युनिटी को सपोर्ट किया, लेकिन और क्या करना चाहते हैं? आपने बोला कि शायद सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं ना आप? यूजीसी चल रहा था मेरा, यूजीसी हाँ, यूजीसी। अच्छा। और उसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं, मतलब हमारे कम्युनिटी लोगों के लिए कुछ बताना चाहेंगे? ये चीज ये कि क्या होता है ना कि कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी में तो बहुत पढ़े लिखे सब काफी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बार क्या करते हैं कि वो ना अपने खुद तो आगे बढ़ गए लेकिन दूसरे के लिए नहीं सोचते कभी भी। वो एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए, और हर समय मोटिव भी लोगों का ये भी नहीं होना चाहिए कि बस हमें उस चीज से फायदा मिले, या फिर तो ही हम चीजें करें, क्योंकि ना बहुत से शेल्टर होम्स का भी तो बहुत वैसा हाल है कि मतलब वो बना तो दिए हैं, बट ये कि वहां पे क्या चल रहा है वो तो वही जानते हैं जो वहां पे फेस करते हैं, वो सब चीजें रहती है। जी और बोलिए। और ये चीजें कभी कभी ऐसा होता है ना कि बात इंसान करना चाहता है, बट क्या है कि ट्रांस बहुत फियरफुल लाइफ होती है, तो ना बहुत सी चीजें बोल नहीं पाते हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब जैसे एजुकेशन सेक्टर में भी, अब वहां पे भी ट्रांस का ऑप्शन नहीं है। यदि वहां पे भी कोई ट्राई करता है तो मेल फीमेल के अलावा ट्रांस का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो भी वहां पे भी उनको ये भी चीज लगती होगी ना कि हम कैसे अप्लाई करें, हम कैसे एजुकेशन लाइन में जाए, क्योंकि वो उनके लिए स्पेस नहीं है वहां पे अलग से। तो भी लोगों को लगता है ये चीजें प्रॉब्लम होती हैं बहुत है। हाँ हाँ, वेरी गुड। जैसे ना जैसे बिगिनिंग एंट्री लेवल पे ही ये प्रॉब्लम टैकल करना चाहिए, मतलब जो है ऑलरेडी प्रोविजन सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जानकारी भी देना चाहिए कि बच्चों को भी, कि मतलब इतने बड़े बड़े लव्स की जरूरत नहीं, लेकिन सेक्सुअलिटी क्या है, कि जेंडर सिर्फ मेल फीमेल, क्या सिर्फ गर्ल बॉय ऐसा नहीं है, बाकी तो कई बार बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत सेंसिटिव और परसेप्टिव होते हैं ना, तो स्कूल टाइम से ही शुरू करना बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट अप्रोच होगा। और आप अपने निजी जिंदगी में और क्या करना चाहते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? मैं तो यही सोच, पहले से ही मैं मतलब मैं ऐसा कि प्रॉब्लम जो भी होती थी ना
उसको, ये तो सोशल वर्क तो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। उससे पहले भी मैं शुरू से, मुझे ना प्रॉब्लम, यदि कहीं भी कुछ भी गलत है ना, उस पे आवाज उठाना चाहिए, मेरे को बहुत पहले से होती। बिजली बिजली विभाग हो गया, चाहे चाहे या फिर कोई कंपनी हो गई, तो जैसे टेलीकॉम कंपनी कुछ कभी होता है ना कि बैलेंस कट जाता है, या फिर किसी चीज का पैसा वाला प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या होता है कि वो हमें घुमा देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ आपकी गलती है, आपकी तरफ से। तो आप बिल्कुल, आपके पास यदि प्रूफ है, चीजें हैं, तो आप पूरा बोलो उनको, विदाउट एनी फियर। और और भी चीजें ये हैं कि अब आइडेंटिटी वाली बात है कि फैमिली जैसे कि सपोर्ट करती है, समझती है, ठीक है, और लोगों को भी, लेकिन क्या होता है ना कहीं वो हमें हाइड कर देती हैं सोसाइटी से और लोगों से। उनके डर में, मन में ये रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग वो ये सोचते हैं कि एक के चक्कर में हम सब लोग क्यों फेस करें, वो ये सोचते हैं, पर ये नहीं सोचते वो एक अकेला आप लोगों के चक्कर में अपने आप को इतना हाइड करके बैठा है, ये सब चीजों को फेस कर रहा है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है उसको, मेंटल हेल्थ तो बहुत से इश्यूज होते हैं कई बार। तो इस चक्कर में ना आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है कि यदि आप अच्छे एजुकेशन में हो, लेकिन कई बार इतना मेंटल हेल्थ होता है कि वो नहीं कर पाते चीजों को, बहुत हम्म, प्रॉब्लम। बट आ, मैंने बहुत ज्यादा चीजें फेस की, वहां भी ऐसे हॉस्टल में थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहां भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत ज्यादा, बहुत हम्म, अलग लेकिन तरीके आप, से ट्रीट करते हाँ थे। आप, हाँ आपके लिए वो एक इंक्लूसिव रूम मिला अच्छे तरह से, वो आपके लेकिन वो आपके भी एक रूम। जर्नी थी बहुत, मतलब सीखने को मिला चीजें, लोगों को भी चीजें काफी वो की, अच्छा था भी, एक्सपीरियंस से सीखने को मिले अलग अलग। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अभी 1 घंटे से ज्यादा हो हाँ गया। जी। अगर आप कुछ और, आप खुद हमसे या किसी और से कुछ और बताना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे, तो थोड़ा, और यहाँ आप खुद को कुछ याद आया वो बताना चाहेंगे, तो आपकी मर्जी। नहीं तो अभी भी खत्म कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। हाँ जी। क्या है कि एक चीज तो ये है कि फैमिली सेंसिटाइजेशन वाली चीजें होना चाहिए, वो चीज है थोड़ा सा टफ टास्क, टफ वो है वो, बट होना चाहिए, एक होना चाहिए जो, जहाँ पे यदि डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है तो उनको उनको भी सेंसिटाइज करना चाहिए। यदि जहाँ पे जॉब सेक्टर है ना, यदि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में मिल रही है कहीं भी जॉब, अगर ट्रांसपर्सन मिल रही है, तो वहाँ पे भी उनको सेंसिटाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि जॉब जो है ना, ठीक है, मिल भी जाती है, बट वहाँ प्रॉब्लम इतनी क्रिएट कर देते हैं कि आप नहीं कर पाते, वहाँ पे छोड़ना भी पड़ जाता है, ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि बहुत लोगों की मैंने देखे हैं, फ्रेंड्स लोगों की भी, कि वो सब प्रॉब्लम फेस करते रहते थे, ये चीज़ है। अच्छा बढ़िया, तो ठीक है, इसी बात पे हम खत्म करते हैं। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं और हमें जबरदस्ती नहीं, लेकिन आपने वॉलंटरीली ऐसे काम करते रहेंगे, हमें बिल्कुल विश्वास है, यकीन है आप पे। और इतना मतलब अच्छी तरह से बोला आपके लाइफ के बारे में, और जो भी आप इंटरवेंशन सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत, वो प्योर सपोर्ट जो बोलते हैं, बहुत बहुत है। और बहुत क्या बोलते हैं, एक तरह से अहम भी। ठीक है, आप फेस कर रहे हैं ये सब, तो शायद हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, इस टाइम या कल देख के कमेंट्स कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, ओके लास्ट में सुने। यही बोलना है कि हमें ना एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, और चीज़ें तब जाके चीज़ हम अच्छी कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने रिसर्च भी करी थी ट्रांसजेंडर लाइवलीहुड के ऊपर से, जॉब वगैरह में क्या इशूज होते हैं उसके ऊपर से, तो उसमें भी मेरे फ्रेंड लोगों ने ही मेरा हेल्प की थी, काफ़ी सारे लोग, मतलब उनसे रिसर्च मैंने जो फिल की थी ना, मैंने मतलब सर्वे किया था गूगल फॉर्म से, तो वो भी मेरे फ्रेंड लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, साथ दिया था। ऐसे मतलब यदि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने रिसर्च के लिए की, मैंने भी और चीज़ों के लिए भी की, कभी उनको प्रॉब्लम थी तो उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनका किया। तो ऐसे मिल के चीज़ें करेंगे यदि हम, तो स्टेप बाय स्टेप शायद चीज़ें बहुत चेंज हो सकती हैं। जी बढ़िया, ये अच्छी बात है, ऐसे पूरा ये आज का सेशन एंड करने के लिए।
बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, आपको बहुत प्यार और इज्जत हमारी तरफ से, रंग और नेतम फाउंडेशन की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। और आप अपना जोश और हिम्मत आप रखेंगे, यही हमारा आशा है, और कविता लिखेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे, ठीक है, और रास्ता दिखाएंगे ना, तो वो बात है, ठीक है। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा, आप मतलब बातें रखने का मुझे मौका मिला, और आपने हाँ मैसेज शेयर की, मैंने शेयर की, काफी अच्छा लगा। जी बिल्कुल, और आपके फ्रेंड्स लोगों में बहुजन क्वेयर कलेक्टिव हो सकते हैं, और कहीं पे भी कोई क्वेयर पर्सन, कोई ट्रांस पर्सन ऐसे इंस्टा लाइव करने के लिए मान गए और उनको इंटरेस्ट है, तो हमें एक मैसेज भेज दीजिए, ठीक है। हाँ जी। और वही, ठीक है। Yeah, so with this we are ending today's conversations, very very enriching, very touching, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिली है हमें, और ऐसे ही हम लाइव करते रहेंगे। ओके, एंड joining us, all the best, take care, bye everybody, bye Sanjana, थैंक यू, so much, थैंक यू। ओके। तो हम एंड करके आपको हाँ क्या जी बोलते जी। हैं, आपको सेव करके आपको स्टार्ट करेंगे, हाँ ठीक जी, है। ओके, ठीक, ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच।